Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's study about brain. आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. The human brain, central nervous system. The central nervous system is the complex network of neurons which carry message from or to the brain to the various part of the bodies. न्यूरॉन बिलियन ऑफ न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है लाइक द ब्रेन. आज हमारा टॉपिक है ब्रेन. ब्रेन इज अ व्हाइटिश मैस which is present in the brain box, which is made up of billion of neuron which carry message to the various part of the body or from the body to the brain. So this is the brain which is present in the brain box. ब्रेन आसानी के लिए ब्रेन डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड किया है इस तरह ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आ रहा है. ब्रेन एनाटॉमिकल जो वर्ड दे रहा है ब्रेन को, जो डिवीजन दिया है ब्रेन को, द प्रोसेंसेपिला व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द फोर ब्रेन. द फोर ब्रेन व्हिच इज द प्रोसेंसेपिला. Then the prosencephalon is further divided into the telencephalon and diencephalon. फोर ब्रेन जो है वो दो में डिवाइड किया है. टेलेनसेफिलॉन जो ऊपर पड़ा है और डाइनसेफिलॉन जो उसके नीचे पड़ा है. प्रोसेंसेफिलॉन, द प्रोसेंसेफिलॉन हैविंग टू हेमिस्फीयर. प्रोसेंसेफिलॉन जो कि फोर ब्रेन भी इसको कहते हैं, इसमें टू हेमिस्फीयर है. एक हेमिस्फीयर ये मैंने बनाया है, इसके उस तरफ भी एक हेमिस्फीयर है. मींस कि प्रोसेंसेफिलॉन में टू हेमिस्फीयर है. Prosencephalon is divided into the telencephalon and diencephalon. So first of all, we study about the telencephalon. Telencephalon में two hemisphere है. Two hemisphere, the right hemisphere and the left hemisphere. Okay, so this one is the hemisphere. The hemisphere having the deep depression and superficial depression. This is the deep depression, this one. And this one is the superficial. The deep depression is the sulcus. Sulcus. Deep depression को sulcus कहते हैं. एक को कहते हैं sulci, ज्यादा को कहते हैं sulcus. और जो superficial ये है, इसको कहते हैं gyrus. Gyrus और gyri means telencephalon में two hemisphere present है. sulcus है, sulcus and gyrus. sulcus gyrus हमारे पास प्रोसेंसेपिलॉन और टेलेनसेपिलॉन में प्रेजेंट है. ये हेमिस्फीयर, दिस इज द राइट हेमिस्फीयर. लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ जब ये अटैच होता है तो एक न्यूरॉन बैंड के थ्रू ये अटैच होता है. उस न्यूरॉन बैंड को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं उसे. What is corpus callosum? Corpus callosum is a neuron band which attach the two hemisphere, the right and left hemisphere. दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जो अटैच कर रहा है वो corpus callosum के थ्रू अटैच हो रहे हैं. So this is the structure which is present in the telencephalon. Telencephalon is the part of prosencephalon. Okay, so ये स्ट्रक्चर जो है telencephalon में जो सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर telencephalon में है. Next, diencephalon. This structure, this is the cerebrum. Okay, means हमने ये cerebrum को स्टडी किया जो टू हेमिस्फीयर है. फोर ब्रेन प्रोसेंसेफिलॉन का जो दूसरा पार्ट है, this one is the diencephalon. The diencephalon having the following structure. Diencephalon, this is the first one and this is the second one is the diencephalon. डाइनसेफिलॉन. डाइनसेफिलॉन में फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेमस प्रेजेंट है. थैलेमस, दिस स्ट्रक्चर इज द थैलेमस. थैलेमस, ओके. जस्ट बिलो द थैलेमस, ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट बिलो द थैलेमस इज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, hypothalamus.
hypothalamus having the structure called pituitary gland. This is the infundibulum, and this structure is the master gland or pituitary gland, which is present in the hypothalamus. Okay, this structure, which start from the hypothalamus and make a almond shape, this structure, this is called the amygdala, which is present in the hypothalamus. The structure which is called the amygdala and the hippocampus. डाइनसेफिलान में थैलेमस प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है. हाइपोथैलेमस में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है इन्फंडिबुलम एंड पिट्यूटरी. फिर इसी हाइपोथैलेमस से एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जो यहाँ पे आके दो स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक को कहते हैं एमिगडाला और दूसरे को कहते हैं हिपोकैम्पस. ये स्ट्रक्चर डाइनसेफिलान में प्रेजेंट है. डाइनसेफिलान में एक कैविटी प्रेजेंट है. दिस इज द कैविटी. This cavity is the lateral ventricle. Lateral ventricle. डाइनसेफिलान में एक कैविटी प्रेजेंट है, उसको कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल. एक कैविटी है, उसी कैविटी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लाइक अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है जो डिवीजन में जो टू हेमिस्फीयर जो सेरिब्रम को डिवाइड करता है, एक थिन मेम्ब्रेन है. दिस इज कॉल्ड द सेप्टम पेलोसुडियम. एक मेम्ब्रेन पड़ा है, उसको कहते हैं सेप्टम पेलोसुडियम, which is present in the lateral ventricle. लेटरल वेंट्रिकल एक कैविटी है, उसी कैविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं सेप्टम पेलोसुडियम. लेटरल वेंट्रिकल के नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फॉर्निक्स. फॉर्निक्स एक अलग स्ट्रक्चर है जो लेटरल वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट है. ओके, ये हम सारे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शन भी पढ़ेंगे इसके बाद. फॉर्निक्स जस्ट बिलो द लेटरल वेंट्रिकल. ओके, फॉर्निक्स के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द कोरॉइड प्लेक्सिस. कोरॉइड प्लेक्सिस जो सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है, कोरॉइड प्लेक्सिस. सो ये सारे जितनी भी स्ट्रक्चर हैं ये डाइनसेफिलान में प्रेजेंट है. वंस अगेन डाइनसेफिलान को मैं रिपीट करूं, डाइनसेफिलान इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेनसेफिलान. फोर ब्रेन का पार्ट है जो बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है. द डाइनसेफिलान हैविंग द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस में भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इन्फंडिबुलम है और पिट्यूटरी ग्लैंड है. फिर हाइपोथैलेमस से एक स्ट्रक्चर अटैच होके एक दो और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस. थैलेमस के अबाव एक कैविटी है, उसको कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल. लेटरल वेंट्रिकल के बिलो फॉर्निक्स प्रेजेंट है, उसके बिलो जो है वो कोरॉइड प्लेक्सिस है. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द डाइनसेफिलान. ये स्ट्रक्चर डाइनसेफिलान है. So this is the telencephalon, this is the diencephalon. Collectively these are the prosencephalon. So ये सारा जो है जो हेमिस्फीयर है ये प्रोसेंसेफिलान मीन ये फोर ब्रेन है. अब मिड ब्रेन की तरफ आते हैं. मिड ब्रेन रिड्यूस है ह्यूमन बीइंग में. जस्ट ये कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को. मिड ब्रेन का काम ये है कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और ये लाइक रेलवे स्टेशन है, इस पे स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं. दिस इज द मिड ब्रेन. इसका इतना खास और कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट ये कनेक्ट कर रहा है. द हाइंड ब्रेन. मिड ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड मेसोनसेफिलान. हाइंड ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द रोम्बोनसेफिलान. रोम्बोनसेफिलान मीन हाइंड ब्रेन having three structure. This structure is the pons, medulla oblongata, and this is the cerebellum. So these three structure is in the rhombocephalon. हाइंड ब्रेन में ये थ्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है.
fons, medulla oblongata and cerebellum. So this is the fons, this is the medulla oblongata and this structure is the cerebellum. अब देखिए मिड ब्रेन, फॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये एक स्टेम बना रहा है, दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? मिड ब्रेन, फॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये तीनों जो है ब्रेन स्टेम को बना रहा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. द prosencephalon, which is divided into telencephalon and diencephalon, the mesencephalon, which is the midbrain, and the rhombocephalon, which is also called the hindbrain. So these structure present in the human brain. Okay students, इसके बाद हम अब फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर की. ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे अब. the forebrain, the prosencephalon, the cerebrum is divided into 4 lobes. cerebrum को 4 लोब में डिवाइड किया है. ये ब्लैक जो मैंने बना है, दिस इज द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब. पेराइटल बोन के नीचे जो लोब प्रेजेंट है, जो मैंने रेड बनाया है, दिस इज द पेराइटल लोब. पेराइटल लोब. ऑक्सीपिटल बोन के आगे जो ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड दी ऑक्सीपिटल लोब. एंड टेम्पोरल बोन के आगे जो लोब प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड दी टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब मींस प्रोसेंसेफिलॉन सेरिब्रम जो है, फोर ब्रेन जो है, आसानी के लिए 4 लोब्स में डिवाइड किया है. फोर ब्रेन, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. 4 लोब में इसको डिवाइड किया है. फंक्शन की तरफ हम आते हैं. प्रोसेंसेफिलॉन, द टेलेंसेफिलॉन एंड डाइनसेफिलॉन. हमारे पास सेरिब्रम में 3 एरियाज प्रेजेंट हैं. 3 एरियाज, द सेंसरी एरियाज, मोटर एरिया एंड द एसोसिएटिव एरिया. सेंसरी, मोटर, एसोसिएटिव एरिया. जितनी भी सीन्स हम फील करते हैं, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम सेरिब्रम में प्रेजेंट है. लाइक हम देखते हैं, विजन, टच करते हैं हम, सुनते हैं हम, ये सारे जो है सेरिब्रम इसको कंट्रोल करता है. अब देखिए कोई बंदा जो है वो टाइप करता है, वो टाइपिंग करता है, तो उसकी ब्रेन के थ्रू जो है उसके फिंगर जो है मूवमेंट करता है. सो जितनी भी सेंसेशन है, किसी बंदे को भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, ये सारे सेंसेशन जो है वो ये प्रोसेंसेफिलॉन सेरिब्रम जो है ये उसको कंट्रोल करता है. मीन्स इसमें 3 एरियाज है. जब कोई बंदा जो है कोई बंदा मीन्स उसको भूख लग जाती है, तो उसको सेंस फील होता है, रिस्पॉन्स में भी उसको मैसेज आता है. मीन्स ये 3 एरियाज जो है, 3 टाइप जो न्यूरॉन्स है, सेंसरी उसको मैसेज ले जाता है और एसोसिएटिव उसके बीच में हेल्प करता है और मोटर दोबारा जो है रिस्पॉन्स देता है. मीन्स सेरिब्रम में 3 एरियाज प्रेजेंट है. ओके, दिस इज द थैलेमस, hypothalamus, and the third part is the amygdala and the hippocampus. Thalamus very important है. thalamus channelize करता है मैसेज को. पहला जो मैसेज आता है वो थैलेमस को आता है, फिर थैलेमस अपने एरियाज को ये मैसेज ले जाते हैं. मींस थैलेमस channelize the message to the hemisphere, to the टू हेमिस्फीयर. थैलेमस, पहले मैसेज थैलेमस को आएगा, थैलेमस चैनलाइज करेगा, हेमिस्फीयर को मैसेज ले जाएगा. जिधर भी उसका सेंटर है उधर थैलेमस उसको ले जाएगा. हाइपोथैलेमस का जो काम है, जो फंक्शन है, लाइक द वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर बैलेंस, टेम्परेचर रेगुलेशन,
स्टडी सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, स्लीप सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, हंगर, थर्स्ट, ये सारे सेंटर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद जो हाइपोथैलेमस का दूसरा पार्ट है एमेगडाला। एमेगडाला का क्या काम है? फीलिंग। एमेगडाला फीलिंग, जितनी भी फीलिंग है वो जितनी भी प्लेजर है, खुशी की प्लेजर है, इमोशनल है, बंदा जज्बाती है, नफरत है, जो भी फीलिंग है, सारी फीलिंग जो है वो एमेगडाला कंट्रोल कर रहा है। हिपोकैम्पस, इसमें मेमोरी प्रेजेंट है। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कंट्रोलिंग सिस्टम हिपोकैम्पस में प्रेजेंट है। दी मिड ब्रेन, इसका बस यही फंक्शन है कि ये कनेक्ट कर रहा है दोनों को, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। दी रोम्बोसेफेलम, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के जो फंक्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शन जितनी भी है वो हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेट सपोज कोई बंदा खाना खाते है, फेरेंक्स तक तो उसके कंट्रोल में है, फेरेंक्स के बाद जब एसोफेगस में बोलस चला जाता है तो उसके कंट्रोल से बाहर होता है। जितनी भी इनवॉलेंट्री है, लाइक हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, ये सारे जो है कोऑर्डिनेशन, ये हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। लाइक द हार्ट बीट और बीपी रेगुलेशन, हार्ट रेट, कोऑर्डिनेशन, वॉमिटिंग, ये भी हाइंड ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, respiration, etc. So this is the function of the hind brain. Okay, student.